Hello everyone, my name is Simran and I'll be teaching you science. Today students will be starting a brand new chapter of your syllabus, that is chapter number 13, that is fun with magnets. I really hope that you all have seen some sort of magnets till now, right? I hope that आपने magnets अपने अपने घरों में देखी होंगी, ठीक है students? So today we'll be studying about the magnets. How can we have the fun with magnets? The properties that magnet is having, the introduction of the chapter of the magnet, the properties that the magnet is having, the applications of the magnets, how magnet was discovered, in so many things regarding the magnets, right students? So let's start with the magnet students. Firstly, if you are going to some place where so many dirtiness is there are so many materials that are just put on and they are not at all cleaned and then they are not at all arranged well. So what happens is that we just pick one by one thing, okay, and it takes so time. So students, if in that particular time I ask you to separate or segregate the metal or that iron pieces, how can you do so? Either you have to put the iron places or the nails by your own with the help of your hands or your friends, right students? Or either one thing that you do is with the help of magnet, you just have that particular magnet like this way and all the iron fillings or the iron pieces just stick to that magnet, right students? We all have seen that magnet attracts iron, okay? We all know this thing. So this is a place where so much dirtiness is there, so much junk is there, heap of junk is this, right? So students, in this heap of junk, this is a crane and this crane is carrying a magnet with itself, right? With the help of the magnet students, it is very easy for that particular crane to load the iron pieces and to separate that with the chunk, right students? अब ध्यान दीजिए, ये क्रेन है और इस क्रेन के पास एक मैग्नेट का कोई भी सोर्स है एंड उसकी हेल्प से वो इस जंक के हीप में से आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है? सो अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द heap of junk to separate the iron fillings, right students? So basically in this particular chapter we have seen that the magnets and have even enjoyed playing with them always, okay? We'll have some toy magnets and we just put that off and then just will have that particular attraction, then repulsion, then attraction and so many things like that, right students? So basically we use the magnets for having some sort of fun, we use the magnet for having some sort of purpose, right students? So have you seen the stickers that remain attached to the iron surfaces like almirahs or the doors of the refrigerators, right? Some things remain attached to that. Why? Because they are containing the magnets and magnets are attracted towards the iron fillings, right students? So it just remains stick to that, attached to that. Alright students, so in some pen holders the pens seem to be sticking to the holder, in some pencil boxes the lid keeps tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pen holders and the pencil boxes have magnets with inside it. तो बात ये कही गई है, कभी कभार आपने पिन, ऑल पिन जो आती है उसके अंदर आपने देखा होगा उसके बॉक्स में ऑल पिन्स एक साथ में हम रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टिक्ट रहती हैं उससे. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑल पेन्स हैं स्टूडेंट्स वो आयरन की बनी हुई होती हैं और आयरन जो होता है किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो उस ऑल पेन बॉक्स के अंदर क्या रखा जाता है? मैग्नेट फिट किया जाता है ताकि जितनी भी जो ऑल पेन्स आएँ वो उसके साथ अटैच हो जाएँ और इधर उधर ना बिखरें. इसी पर्पस से ऑल पेन बॉक्स बनाया जाता है, उसके अंदर मैग्नेट फिट करके. सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे स्टिकर्स की जो रेफ्रिजरेटर के अंदर बिल्कुल स्टिक रहते हैं, इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेट फिट किया जाता है. सिमिलरली पेंसिल बॉक्सेस जो होते हैं वो लिड उसके अंदर टाइटली फिट रहे, उसके अंदर भी इस टाइप का काम किया जाता है, मैग्नेट को फिट किया जाता है, ठीक है? सम कॉमन प्लेसेस वेयर मैग्नेट इज फिट इज द रेफ्रिजरेटर. इसके डोर्स के अंदर भी देखो ये वाली जो चीज़ें होती है डोर को दोनों को ट्रैक करता है बिकॉज इट इज़ हैविंग द मैग्नेट, राइट स्टूडेंट्स? इन द ज्योमेट्री बॉक्स ऑल्सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस थिंग, इट इज़ हैविंग मैग्नेट, ठीक है? अगर आप उसको नीचे करोगे तो वो बिल्कुल आराम से एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, ठीक है? इन दिस स्टूडेंट्स द पेन होल्डर, दिस इज अ पेन होल्डर, इट इज़ हैविंग मैग्नेट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट स्टूडेंट्स? पॉल्स की तरफ होता है बेसिकली, तो वो मैग्नेट क्या करता है? ऑल पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इधर उधर सेपरेट नहीं होने देता, ठीक है स्टूडेंट्स? सो सम कॉमन आइटम्स
दैट हैव मैग्नेट्स इनसाइड देम, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनके आसपास मैग्नेट होती है। मैग्नेट काम क्या करती है स्टूडेंट्स? मैग्नेट एक ऐसे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है जो कि हमें बाकी चीज़ों से सेपरेट करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेन है, अगर किसी को चुभ जाएगी तो वैसे भी प्रॉब्लम होगी ना, तो उस केस में हम उसको सेपरेट रखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैग्नेट का यूज़ करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नेट्स को एक्चुअली डिस्कवर किया कैसे गया था, या मैग्नेट्स एक्चुअली डिस्कवर कैसे हुई थी। इसके पीछे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी स्टूडेंट्स। There lived a boy whose name was Magnus. Okay, Magnus was a boy who used to have the herd of sheep to graze in a mountainside. Okay, उसके पास बहुत सारी बकरियां और भेड़ें हुआ करती थी, जिनके ग्रुप को, जिसको हम हर्ड बोलते हैं, वो खाने के लिए, उनको ग्रेजिंग के लिए किसी माउंटेन साइड पे लेके जाया करता था, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज सेड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स जिसको कहते हैं चरैया, ठीक है, जो कि अपनी भेड़ और बकरियों को खाना खिलाता है, उनको चराता है, ठीक है। नेम मैग्नीस हु लिव्ड इन द एशियन ग्रीस। ग्रीस के अंदर रहा करता था वो, ठीक है, और वो अपनी भेड़ों को और बकरियों के ग्रुप को जब खाना खिलाने के लिए माउंटेन साइड पे लेकर जाता था डेली बेसिस पे, ओके, ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू अ नियरबाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, वो उनको खाने खिलाने के लिए माउंटेन साइड पे लेके जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल द हर्ड, राइट। अब उनको प्रॉपर उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ही यूज्ड टू हैव अ स्टिक, ओके। अब उस स्टिक के अंदर उसके लास्ट पे, उसके एंड पे क्या था? एक आयरन का मतलब आयरन का पीस जो था वो जुड़ा हुआ था, बेसिकली आयरन का टुकड़ा था जो उसके लास्ट पे था, ठीक है। The stick had a small piece of iron attached at one end. For example, this is a stick, तो उसके लास्ट में आयरन का कुछ था पीस, ठीक है। सो ये इसलिए था ताकि ग्रुप को कंट्रोल कर सके, वो हर्ड जो था उसको कंट्रोल रख सके। नाउ स्टूडेंट्स, एक दिन वो जब उनको माउंटेन साइड पे खाना खिलाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहा था, व्हाट ही फाउंड वाज दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैग्नीज टू जस्ट लेट द स्टिक फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टिक माउंटेन साइड। किसी रॉक के अंदर उसकी जाके स्टिक फंस गई और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया उस स्टिक को वहां से छुड़वाना, ठीक है स्टूडेंट्स। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑफ द माउंटेन साइड। मतलब किसी पहाड़ पे उसने बाई चांस लेके जा रहा होगा अपनी स्टिक को, और उसके स्टिक को इतना मुश्किल हो गया उसे छुड़वाना कि वो स्टिक फ्री ही नहीं हो पा रही थी उस रॉक के साथ। माना जाता है कि वो जो माउंटेन साइड था या जो रॉक थी वो आयरन को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे से, तभी उसकी जो स्टिक थी वो अट्रैक्शन के कारण वो छुड़वा नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था उसलिए, ठीक है। तो ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माना गया था कि वो जो रॉक थी उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो कि मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं एज मैग्नेट। और माना जाता है कि ये जो रॉक थी वो फर्स्ट डिस्कवर्ड मैग्नेट थी, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट, जिसके अंदर नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इट सेम दैट एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, कि जो रॉक थी वो स्टिक को अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। अब जो वो रॉक थी, बिकॉज वो आयरन को अट्रैक्ट कर रही थी, तो उस रॉक ने, जो शेफर्ड था, चरैया था, जो मैग्नीस था, उसकी स्टिक के आयरन वाले एंड पोर्शन को अट्रैक्ट करके रखा, उसकी टिप को पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा, ठीक है। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। माना जाता है यही वो इंसिडेंट था जिससे मैग्नेट डिस्कवर हुई थी, नेचुरल मैग्नेट्स की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो जो रॉक थी उसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया, ठीक है। किसके नाम पे? मैग्नीज के नाम पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट perhaps after the name of the shepherd, right? उसी चरैये के नाम पे, उसी शेफर्ड के नाम पे उस रॉक को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। अब वो जो रॉक थी उसके अंदर माना जाता है कि आयरन थी, प्लस माना जाता है कि जो मैग्नेटाइट वाली रॉक्स थी वो कहाँ पे पाई जाती थी? मैग्नीशिया में पाई जाती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। सम पीपल believe that the magnetite was first discovered at a place called Magnesia, ठीक है। वो जो रॉक थी
वो कहाँ पे फर्स्टली डिस्कवर हुई थी? मैग्नीशिया में। किसके द्वारा डिस्कवर हुई थी? मैग्नीज के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? He had a stick that has an iron tip at its end, and that particular iron tip was attracted towards a rock that is called magnetite, that is found in Magnesia. Right, students? That is in South Greece. That is in ancient Greece. Right, students? Now we'll be talking about some sort of magnets. Right, students? The substances that attract the iron, okay, that have the property of attracting the iron are called the magnets. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम मैग्नेट्स. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द स्टोरी गोज. इसी तरह से स्टोरी चलती रही, किसके नाम पे? मैग्नीज के नाम पे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ विल परफॉर्म एन एक्टिविटी दैट will tell us about the magnets property of attraction of iron. ठीक है, firstly students we are taking a thermocol cup or a plastic or paper cup. Right students, अब हम इसको फिक्स करें किसी स्टैंड पे और उसको स्टिक करा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन द फिगर. एक क्लैम्प के अंदर हमने इसको फिक्स किया है. नाउ वी हैव टू प्लेस अ मैग्नेट कवर्ड विद द पेपर इनसाइड दिस कप. ठीक है, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप and cover it with the paper so that the magnet is not at all visible. ताकि वो मैग्नेट दिखे नहीं, तो हमने पेपर से कवर करके इस कप के अंदर मैग्नेट रख दिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड अप ऑफ आयरन. आप एक क्लिप लो, लोहे की क्लिप, जिसके अंदर आप उसके अंदर थोड़ा सा धागा बांध दो, थ्रेड को बांध दो. ठीक है स्टूडेंट्स, फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. अब स्टैंड का जो बेस है ना, ठीक है, इसके अंदर इस दूसरे एंड से इसको थ्रेड को बांधोगे ना. जब आप दूसरे एंड पे, एक के अंदर तो हमने आयरन क्लिप को उसके अंदर अटैच कर दिया था, बाकी आप स्टैंड के बेस के अंदर भी इसको टाई कर दो. ठीक है, अपने माइंड में ही रखना है, ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. जो थ्रेड का जो लेंथ है उसको कंपैरेटिवली छोटा रखना है. वही हमें बताएगा कि कैसे आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के थ्रू. ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. अब हमने क्या करना है, क्लिप को, जो आपके पास क्लिप थी ना, उसको आप इसके बेस की तरफ लेके जाओगे. ठीक है, कप के बेस के पास लेके जाओगे तो हम देखेंगे कि वो जो क्लिप है ना, हवा के अंदर ही, मतलब बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, स्टैंड करेगी. ठीक है, यही ट्रिक है. द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. एक पतंग के जैसे जो क्लिप थी वो हवा में हमें फ्लोट करती हुई दिखेगी, और हम देखेंगे कि रेज्ड है एयर के अंदर विदाउट एनी सपोर्ट. यही हमें पता लगता है यहीं से कि जो आयरन मैग्नेट थी ना उस कप के अंदर, वो किसको अट्रैक्ट कर रही थी? आयरन क्लिप को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, और इसी अट्रैक्शन के कारण जो क्लिप था वो रेज्ड हो रहा था. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग और द फैक्टर दैट इज हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड दैट द आयरन is attracted towards the magnet. Right students, next we'll be discussing about magnetic and non-magnetic materials. कि ऐसे कौन से materials होते हैं जिनको हम magnetic materials कहते हैं, and ऐसे कौन से materials होते हैं जिनको हम non-magnetic materials कहते हैं. ठीक है students, firstly for a very brief intro मैं आपको बता देती हूँ, जो substances magnet की तरफ attract होते हैं उनको हम बोलते हैं magnetic substances, एंड वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फॉर डिस्टिंग्विशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल परफॉर्म एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमने किसके पीछे जाना है या किसके फुटस्टेप्स पे जाना है? मैग्नीज की. ठीक है, मैग्नीज को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी में लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नीज. ठीक है, यही करना है हमें. Only this time will change the positions of the magnet and the iron. अब हम क्या करेंगे, बस इसमें हमें क्या डिफरेंस रखेंगे, आयरन की और जो मैग्नेट है उसकी पोजीशंस अलग रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक. अब हमारे पास आयरन पीस नहीं होगा, मैग्नेट होगा शेफर्ड स्टिक के पास में. ठीक है स्टूडेंट्स, और वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट with the tape or some glue. Let us now go out on a Magnese walk through the school playground. इसमें है हमें पहले तो मैग्नीज वॉक करनी है, लेकिन वॉक करनी कैसे है स्कूल के प्लेग्राउंड में? ठीक है, करनी कैसे है? कोई आप या तो हॉकी स्टिक ले लो, या आप क्रिकेट का विकेट ले लो, या फिर आप कोई बैट ले लो, या फिर आप कोई वॉकिंग स्टिक ले लो. ठीक है,
मैग्नीज ने क्या किया था, उसकी स्टिक के जो एंड पे था आयरन टिप थी, और जो रॉक था वो किसका था, मैग्नेट का था। लेकिन अभी हमने बात की, हमने क्या करनी है, आयरन की और मैग्नेट की पोजीशंस उल्टी कर देनी है, ठीक है। अब जहां पे उसकी स्टिक के नीचे आयरन पीस था, हमें वहां पे तो मैग्नेट लगाना है, और ठीक है जहां पे वो रॉक लेके जा रहा था मैग्नेट के, अब हमें मैग्नेट की रॉक तो कहीं पे मिलेगी नहीं ना, ठीक है, तो वहां पे हम आयरन के पीसेस रखेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग मटेरियल्स रखेंगे, जिसका हम चेक करेंगे क्या ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्या ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मैग्नेट की तरफ बाय द वे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, आपकी कोई भी हॉकी स्टिक, क्रिकेट स्टिक और वॉकिंग स्टिक, इनके ऊपर इनके नीचे हमने कोई भी मैग्नेट को फिक्स करना है, चाहे आप वो टेप से करो, चाहे आप वो ग्लू से करो, चाहे आप किसी भी चीज से करो, ठीक है। अब आपने अपनी स्टिक के अंदर मैग्नेट लगा ली, उसको फिक्स कर लिया, अब आप उसको मैग्नीज वॉक करो, मैग्नीज वॉक मतलब रेंडमली उस स्टिक को घुमाते घुमाते अपने प्लेग्राउंड में वॉक करके आओ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डज आवर मैग्नीज स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। अब देखो कि आप जब मैग्नीज वॉक कर रहे थे तो आपकी जो मैग्नीज स्टिक आपने जो बनाई थी वो आपके स्कूल के प्लेग्राउंड से क्या क्या चीजें पिक कर रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, आपके क्लासरूम में ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो उठा रही है, जो वो पिक कर रही है, ठीक है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अब अपने आसपास में से ऐसे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कीजिए जो हमारे डेली यूज में आते हैं, और उनको आप क्या कीजिए, अपनी मैग्नेट स्टिक की हेल्प से उसको लोकेट कीजिए, या फिर आप उसको पिक करने का ट्राई कीजिए। टेस्ट दीज विद मैग्नेट स्टिक, अब उसको टेस्ट कीजिए कि क्या वो पिक हो पा रही है मैग्नेट स्टिक की हेल्प से या नहीं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट स्टिक की हेल्प से पिक हो पाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अट्रैक्टेड towards magnet, there will be some objects that will be attracted towards the magnets, right students? And there will be some objects that will be don't get attracted towards the magnet. ठीक है, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे ना जब हम मैग्नेट्स वॉक करेंगे मैग्नेट स्टिक के हेल्प से, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। एंड जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड नहीं फील करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। These will be called non-magnetic objects, right students? Have a look. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. अब बोला है कि मैग्नेट स्टिक के अलावा अगर आप एक मैग्नेट का पीस ले रहे हो और उसको टच करवा रहे हो बाकी ऑब्जेक्ट से, तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स whereas some do not get attracted towards the magnet. अब कुछ एक ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अट्रैक्ट होंगे उनको हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको हम नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। So students, what we have discussed, the materials which get attracted towards a magnet are magnetic materials. For example, iron, nickel and cobalt. ये वो substances है जो magnet की तरफ attract होती हैं, ठीक है students. And the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. For example, paper, wood, etc. Right students? इससे हमें पता लग गया कि magnetic materials कौन से होते हैं और non-magnetic materials कौन से होते हैं, ठीक है students. Now we'll be discussing an activity. ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, रब मैग्नेट इन अ सैंड और सॉइल। अब हम क्या करेंगे, कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है या फिर कोई रेत होता है वहाँ पे मैग्नेट को रब करो। पुल आउट अ मैग्नेट, आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। नाउ यू हैव टू चेक when you have pulled out the magnet, there will be some particles on the basis of the sand and soil that are sticking to that particular magnet, right students? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand and soil. Now you will just shake the magnet to remove the sand and soil and the particles, right students? Now are some particles still sticking to it?
there will be some particles that are still sticking to the magnet after you have shaken that particular magnet, right students? There might be small pieces of iron fillings picked up from the soil. Students, अब ये क्या हो सकती है? आयरन फिलिंग्स हो सकती हैं, और आयरन फिलिंग्स जो होती है यूजुअली शेक करने से रिमूव नहीं होती, मैग्नेट से नहीं जाती, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आयरन फिलिंग सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर होंगी, और ये जब आपने मैग्नेट को वहाँ पे रब किया तो उसके साथ अटैच हो गई होंगी। अब क्योंकि मैग्नेट आयरन से अट्रैक्ट होता है या फिर आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो ये आयरन फिलिंग्स उसके ऊपर आ गई। तो स्टूडेंट्स, थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और द सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन और नॉट। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां की सैंड या फिर वहां की सॉइल में कितनी आयरन फिलिंग्स पाई जाती हैं या फिर पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। अब आप छुट्टियों में जहाँ पे भी जाओ वो एक्टिविटी यहाँ पे आप कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन कौन से प्लेसेस में कितनी ज्यादा आयरन फिलिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? Does the magnet with iron filling sticking to it look like any of the one shown in the figure? क्या जो मैग्नेट्स हैं वो इस टाइप की दिखेंगी, आयरन फिलिंग्स जिनके अंदर होंगी? एक फर्स्ट वाले में देखो आयरन फिलिंग्स ज़्यादातर उसके एंड्स पे हैं, सेकेंड वाले में कंपैरेटिवली कम है, मतलब ये कोई वो प्लेस होगा जहाँ पे कम आयरन फिलिंग्स पाई जाती होंगी। थर्ड वाले के अंदर आयरन के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई आयरन फिलिंग ही नहीं है, ठीक है? सो फर्स्ट वन, मैग्नेट विद मेनी आयरन फिलिंग्स, काफ़ी सारी आयरन फिलिंग्स है। सेकेंड वाले में थोड़ी कम है, फ्योर, एंड द थर्ड वन हैज नो आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट, उसके अंदर कोई भी आयरन फिलिंग नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या सीखा कि ऐसे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स होती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जो पाई जाती हैं सैंड के अंदर और सॉइल के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, कि हम पोल्स ऑफ मैग्नेट से क्या समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट्स होते हैं, हमने ध्यान दिया होगा, देखो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स थी, यूजुअली कहाँ पे थी? ये इसके एंड्स पे थी ना। तो मैग्नेट के अंदर कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जहां पे आयरन ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है? तो जहां पे आयरन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है उनको क्या बोला जाता है? पोल्स ऑफ मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है? देखो एक एक्टिविटी, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब कोई आयरन फिलिंग्स हो बहुत सारी और उसको एक पेपर पे बिछा दो, ठीक है? नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। अब उस शीट पे आप क्या रखो? बार मैग्नेट रख दो, ठीक है? अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब मैग्नेट फिलिंग्स जो होंगी ना वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट होंगी, लेकिन पूरी मैग्नेट के अंदर सेम टाइप ऑफ आयरन फिलिंग्स नहीं होंगी। जितनी भी आयरन फिलिंग्स होंगी ना यूजुअली वो उसके एंड पे स्टिक करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी भी आयरन फिलिंग्स थी वो जनरली उसके साइड्स पे जा रही थी, उसके एंड पोर्शंस पे जा रही थी। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? नो, ऑल ओवर नहीं फैलती है, बिल्कुल एंड पे फैलती है, ठीक है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? अब कुछ एक आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो सेंटर में रहेंगी, बाकी ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो साइड्स पे जाएंगी, ठीक है? इधर काइंड ऑफ दिस थिंग, ठीक है स्टूडेंट्स? रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब हो सकता है एक बार बाई चांस हुआ हो, ठीक है? सेम एक्टिविटी आप दोबारा करो, सिमिलरली आप दोबारा भी देखोगे कि इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? ऑब्वियसली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सेम पैटर्न बन रहा है, अभी जैसे पिछली बार भी साइड्स पे गई थी, अभी भी ये साइड्स पे जा रही है, ठीक है? यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। अब इस चीज को प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए आप आयरन फिलिंग्स की जगह पे पिन का यूज कर सकते हो, आयरन पिन, या फिर आयरन नेल्स का यूज कर सकते हो, कील जो होती है, और अलग अलग शेप की आयरन मैग्नेट ले सकते हो। तब भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी शेप की आप आयरन मैग्नेट ले लो वो उसके साइड्स पे जाएगी, उसके पोल्स पे जाएगी, ठीक है? और कोई भी आयरन का टुकड़ा ले लो तो भी पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है? We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to the two ends of a bar magnet. हम ये ऑब्जर्व करेंगे इतनी सारी एक्टिविटीज करके कि ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, आयरन मटेरियल्स होते हैं, वो कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं? किसी भी मैग्नेट के एंड पोर्शंस पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। कहा जाता है कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो इन्हीं एंड्स के आसपास पाए जाते हैं, तभी जो मटेरियल्स होते हैं वो इसके एंड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने बहुत कुछ सीखा, घर पे आज आप अपनी ये चीजें पढ़ के आना, ठीक है? क्या क्या सीखा हमने? वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स,
we have discussed about the poles of magnet, right students? In the next class, we will be discussing about the directions only, students. Till then, have a nice day to you all. We'll be meeting in your next class. Bye-bye.